Hello students, welcome back all of you. Today we are going to start your third chapter. The name is normal distribution. लास्ट वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर जो कि था रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो हमने कंप्लीट किया था। आई होप कि मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो आपका कंप्लीट है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर थर्ड एंड न्यू चैप्टर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली ये जो चैप्टर है वो बेस्ड है ऑन वन फॉर्मेट। ये जो है डायग्राम उसके बेसिस पे सारे सम्स जो है वो सॉल्व होंगे। 11th में आप पढ़ चुके हो स्क्यूनेस, राइट? उसी से थोड़ा रिलेटेड है ये चैप्टर बट उससे थोड़ा डिफरेंट है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। In the previous chapter, we have studied the probability distribution for a discrete random variable. Now, we shall study the probability distribution for a continuous random variable. Here, continuous random variable के ऊपर से probability find करना हम सीखेंगे. We know that if a random variable x can assume any value of real set r or within any interval of real set r, then it is called continuous random variable. If a random variable can assume any value between the definite interval a to b, then it is denoted by a is less than or equal to x, less than or equal to b. A function for obtaining probability that a continuous random variable assumes value between specified interval is called probability density function of that variable f. It satisfies the following two conditions. यहाँ पे probability का density function is most IMP 1 मार्क्स में या तो फिर एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो यहाँ पे 1 मार्क्स के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है। वो जनरली दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट वन इज the probability that the value of random variable lies within the specified interval is non-negative. जो प्रोबेबिलिटी डेस्टिनी फंक्शन है, जो प्रोबेबिलिटी है जो कि जिसकी वैल्यू रैंडम वेरिएबल जो होती है उसमें नॉन नेगेटिव वैल्यूज होती है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज नहीं होती है। लाइज विद इन द स्पेसिफाइड इंटरवल इज नॉन नेगेटिव। लाइज यानी कि उसी इंटरवल में वो उसकी वैल्यू रहती है। Second one is the total probability that the random variable assumes any value within the specified interval is 1. Total probability is always 1, यानी कि इसकी जो टोटल होगी प्रोबेबिलिटी का जो टोटल होगा वो क्या होगा always 1. और जो प्रोबेबिलिटी है the probability that the value of random variable lies within the specified interval is non-negative. Clear? Thus, probability density function is used to determine probability that the value of random variable x lies within the specified interval a to b, and it is denoted as p a less than or equal to x less than b. It is necessary to note here that probability for definite value of continuous variable x obtained by the probability density function is always 0. Thus, the probabilities obtained by using probability density function are always equal. Normal distribution is very important probability distribution among probability distributions for continuous random variable and is very small useful distribution for higher statistical study. It can be defined as under if x is random variable within with mean यानी कि mu and standard deviation sigma, and if its probability density function is, यहाँ पे mean क्या है, mean is mu and standard deviation sigma.
हम मीन को डिनोट करेंगे विथ म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करेंगे विथ सिग्मा. दिस साइन इज नोन एज सिग्मा. एंड आवर डेस्टिनी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेस्टिनी फंक्शन इज fx is equals to 1 upon sigma under root 2 pi. This is the symbol of pi. उसकी e पावर -1/2 पावर x minus mu upon sigma square. This is the destiny function. ये आपको क्या करना है, याद रखना है. आपको कभी भी पूछा जाए so you have to write this for probability destiny function. fx is equals to 1 upon sigma under root 2 pi e minus 1/2 power x minus mu upon sigma whole square, where pi is equals to 3.1416 and e is equals to 2.7183 are the constant. यहाँ पे दो वैल्यूज क्या है, constant pi and e. Then x is called normal variable and fx is called probability destiny function of normal random variable. The distribution of the normal random variable x is called normal distribution and it is denoted by n, sigma and mu and sigma square. A curve drawn by considering different values of normal random variable x and its respective values of probability destiny function is called normal curve and is shown as under. इसको बोला जाता है normal curve. हर सम में आपको ये कर्व, ये जो डायग्राम है वो ड्रॉ करना पड़ेगा. सो इसको अगर मैं आपको समझाऊं, as shown in the above diagram, normal curve is completely bell shaped which shows that its symmetric distribution always कौन से शेप में होता है, बेल शेप में. इसको बोलते हैं बेल शेप. जो बीच में जो उसके दो पार्ट्स होते हैं वो दो पार्ट्स की वैल्यू क्या होती है, इक्वल. Method for finding the probability area from the tables of standard normal curve. अब ये जो कर्व है उसका अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं, ये कर्व भी आप 11th स्टैंडर्ड में स्क्यूनेस वाले चैप्टर में सीख चुके हो. क्लियर, याद आ रहा है? कुछ सिमेट्रिक था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. We know that a normal curve is a curve of normal destiny function and it can be seen as under. यहाँ पे माइनस इंफिनिटी तक ये जो बीच वाला जो लाइन है, बीच वाली लाइन है, उसके लेफ्ट साइड जो है सारी माइनस वैल्यू जाएगी, उसकी राइट साइड सारी प्लस वैल्यू जाएगी. कहाँ तक, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी. और बीच में जो होगा मीन x इज इक्वल्स टू म्यू. The area of shaded region between the curve and axis is equal. अब हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 1. तो यहाँ पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0.5. Similar this side 0.5. इसकी 0.5 होगी यहाँ तक, बीच वाली लाइन तक, और इसकी भी 0.5. टोटल इज ऑलवेज 1. The normal curve of normal variable x is symmetrical about mean mu on the both sides and has the perpendicular line at the point x is equals to mu on x axis divides the area for normal curve in two equal parts. ये जो x वाली लाइन है, जो mu वाली लाइन है, वो क्या करती है, पूरे जो कर्व को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है and both parts have same value. The area to right side of x is equals to mu is 0.5 and it is denoted by p x 0.5 and the left side x denoted by
0.5. X greater than or equal to mu is equals to 0.5. Probability Px less than or equal to mu is equals to 0.5. In normal curve, probability that value of normal variable x lies between mu and its any specific value can be shown by the area shaded region between. अब आपको इस चैप्टर में किस तरह के सम पूछे जाते हैं? सपोज कि आपको क्या दिया गया होगा, यहां से यहां तक की वैल्यू दी गई होगी और आपको पूछी गई होगी यहां से यहां तक की वैल्यू। समझ में आ रहा है? ये जो वैल्यू है वो आपको दी गई होगी और ये वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ऐसा आपको क्वेश्चन में पूछा गया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है 0.5, उसमें से माइनस करना है यहां से यहां तक की वैल्यू, तो मिल जाएगी यहां से यहां तक की वैल्यू। समझ में आ रहा है? अगर आपको भुज से अहमदाबाद जाने के किलोमीटर जाने का डिस्टेंस आपको पता है, राइट? भुज से अहमदाबाद का डिस्टेंस है वो आपको पता है, फिर भुज से गांधीधाम का डिस्टेंस आपको दिया गया है, फिर आपको पूछा गया है कि गांधीधाम से अहमदाबाद का डिस्टेंस फाइंड कीजिए। तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करोगे, गांधीधाम, भुज से गांधीधाम का डिस्टेंस आप उसमें से माइनस कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा गांधीधाम से अहमदाबाद जाने का डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? सिमिलर उसी वे में यहाँ पे भी दिया गया होगा। सपोज कि ये भुज टू अहमदाबाद का डिस्टेंस है वो आपको पता है 0.5 है। इस सब की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ एग्जांपल भुज, अहमदाबाद एंड गांधीधाम का ले रही हूँ। नाउ दिस इज भुज टू गांधीधाम, ये डिस्टेंस आपको पता है और ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो 0.5 में से आप भुज टू गांधीधाम का डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो आपको भुज गांधीधाम टू अहमदाबाद का डिस्टेंस पता चल जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी वे में आपको पूछा जाएगा। सबसे पहले तो एक z यहाँ पे यूज होता है, z को कंसीडर करके पहले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फिर उसकी वैल्यू आपकी बुक में पीछे z टेबल दिया गया है उसमें देखनी है एंड देयर आफ्टर हम ये सम सॉल्व कर पाएंगे। वो z टेबल में किस तरह से देखना है और ये सम किस तरह से सॉल्व होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे। इस वीडियो में ये बेसिक जो था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो थी, बेसिक जो फॉर्मूलाज थे वो मैंने आपको सिखाए हैं। इसको आप घर पे रिवाइज जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।